we saw linear regression is this. This was a practical implementation. So I will explain you this once again, but let's write some notes and let's practice this linear regression. Mhm. Let's write some notes. Cool. Linear regression concept. Okay. So the very first thing that we have seen is like what is a regression? Okay, so we must understand these terminologies if anyone asks. Okay, although no one asks, but we must understand. The voice is not clear. Is it not clear or uh, one second. Hello, 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 hello. Is it somewhat clear? थोड़ा बहुत clear? Not clear. Still issues. Okay, somewhat clear. ठीक है. Cool. So we are talking about what is regression, right? So basically, regression is a tool, to find the existence of, let's say, you have a, independent variables and dependent variables. So you need to find the existence of associate. Basically, उनके अंदर का a relation you want to find, right? You want to find relation between dependent variables and independent variables. So regression is what? Regression is a tool to find a relation between your dependent variable variable dependent variable हम usually y लेते हैं, right? And independent then variables, so that can range from x1 to x2 to x3 and so on n तक वो vary कर सकते हैं. Okay, so this is like a this is what the regression is. From a linear regression, if anyone asks what is regression, you can say it is nothing but a to finding a relation, or it is a tool to find a relation between dependent variables and independent variables. Okay, so this relationship can be what? This relationship can be this relationship can be linear or non-linear, linear or non-linear. Okay, meaning these can have a linearity in between the variables, other cannot be, right? So depend on the variables, right? So we can measure an outcome of a study. So so what variables, how variables are, based on that we can say whether this is linear or non-linear. Okay. So I hope the regression is clear, and in machine learning, so regression in machine learning is, so it's a supervised learning algorithm, right? It's a supervised machine learning algorithm, right? And it is used for predictive analysis. Okay. It is used for predictive analysis. What is predictive? Meaning you are predicting something, right? You're predicting some values. Okay. So this is why you will call that thing
as a predicting. Uh, we can use that as for a predicting, to predict something, okay, to predict something. So now let's come to a linear regression. This is what about regression. But what is linear regression? Okay, what is linear regression? So linear regression is like it's a machine learning algorithm, right? Which falls under supervised machine learning algorithm. So we have seen our previous lectures also. Okay. So the this linear regression is like a basically uh, like very commonly used for this predictive analysis. Okay. So we can say this is supervised machine learning algo. Okay. This is supervised machine learning algo. And it is commonly used for what? Commonly used for prediction, prediction or predict predictive predictive analysis. ठीक है ये kind of theory कर रहे हैं हम but it will like we are revising what we have learned also ठीक है but ये theory से क्या होगा आपको एक थोड़ा बहुत idea भी रहेगा so if you go here and from these notes हमने यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीजें बोर्ड पे पढ़ी है राइट so what are target variables what are so machine learning supervised है ना all these things what are independent variables what are dependent variables इनको target variables भी कहा जाता है इनको input variables भी कहा जाता है right so this is what linear regression तो इसको हम थोड़ा सा theory में लिख रहे हैं okay theory में लिख रहे हैं so this model basically describes the relation between what targeted columns and input columns by fitting a line on the observed data ठीक है तो ये समझना चाहिए क्या करता है it or this model is basically um, describe describe the relation between what between which two things first target variable इसी को हम डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं एंड बिटवीन व्हाट सेकंड इज इनपुट वेरिएबल्स या उसी को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वेरिएबल्स भी कहते हैं ओके so it finds the relationship between these two things how it finds so by fitting a line on ob- observed observed data observed data ओके जो हमारा ऑब्जर्व डेटा क्या होता है मीनिंग जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों भी जो वेरिएबल्स है हमारा जो भी डेटा है उसको इस कंप्लीट डेटा को ऑब्जर्व डेटा भी कहा जाता है ओके इस कंप्लीट चीज को ऑब्जर्व डेटा भी कहा जाता है ओके सो नाउ इसको हम लीनियर रिग्रेशन कब कहेंगे ओके हम मतलब हमने रिलेशन फाइंड कर लिया इन दोनों का रिलेशन फाइंड कर लिया एक लाइन फिट करने की कोशिश भी की ठीक है बट व्हेन वी विल कॉल this algorithm as a linear algorithm okay linear algorithm so when when the target variables are okay target variables are linearly related to input variables input variables then it is called as what then it is called as linear regression okay then it is called as linear regression okay then it is called as linear regression ठीक है ये थोड़ा बहुत आइडिया आ गया हमें लीनियर रिग्रेशन का भी इट इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर व्हाट प्रिडिक्शन सिंपल है प्रिडिक्शन के लिए यूज करा जाता है और ये मॉडल क्या करता है it finds the relation between target and input variables by fitting a line on observed data basically on a observed data ठीक है and
जब ये टारगेट वेरिएबल या हमारा इनपुट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों भी लीनियरली रिलेटेड होते हैं, देन वी कॉल्ड इट एज अ लीनियर रिग्रेशन। ओके, देन वी कॉल्ड इट एज अ लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो एक मल्टीनॉमिनल रिलेशन भी होता है, व्हाट्स इट कॉल्ड एज मल्टी मल्टीनॉमियल नॉमियल रिग्रेशन। मल्टीनॉमियल रिग्रेशन में क्या होता है गाइस? अरे ये क्या है? Anyways, multinomial regression में क्या होता है? When we have more than one input variable, okay? तब when we have more than one input variable, then it can be called multinomial regression. ठीक है, जब कब कहेंगे मल्टीनोमियल? जब उसके अंदर मोर देन वन इनपुट वेरिएबल्स रहेंगे तब। ओके, मोर देन वन इनपुट वेरिएबल्स रहेंगे तब। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सम थ्योरी। कुछ और हम बेस्ट फिट लाइन के बारे में जानते हैं। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन। ओके, बेस्ट फिट लाइन किसमें? ऑब्वियसली व्हाई वी यूज why we draw a best fit line to to so बेसिकली हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, यहाँ पर जब हम बेस्ट फिट लाइन फाइंड करते हैं, दिस बेस्ट फिट लाइन इज नथिंग बट प्रिडिक्टेड लाइन, है ना। लीनियर रिग्रेशन के लिए प्रिडिक्टेड लाइन, इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो हमारे प्रिडिक्टेड पॉइंट्स है, राइट। तो वही चीज यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से लीनियर रिग्रेशन का ये प्रिडिक्टेड लाइन है, ठीक है, प्रिडिक्टेड लाइन है फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर जब आप इसको यूज करोगे, ठीक है। So this is the line which is closest to the maximum data point, right? हमने क्या कैसे ड्रॉ करी थी? जो भी हमारे ऑब्जर्व्ड डेटा पॉइंट्स है उसके अंदर से सबके पास से ये सबका जो डिस्टेंस है, जो आपके एक्चुअल पॉइंट है, उनका डिस्टेंस सबसे कम रहना चाहिए। उस लाइन को ही हम बेस्ट फिट लाइन कहते हैं, राइट। एंड जो डिस्टेंस कम रहा तो जो भी डिस्टेंस रहता है उसको क्या कहते हैं? एरर्स। ओके, इफ आई राइट something here, so this line which is closest to the maximum data point, okay, on the graph पकड़ लो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो क्लोजेस्ट है, ओके, जो क्लोजेस्ट है। इसका और एक नाम क्या रखा है इन्होंने? रिग्रेशन लाइन, ठीक है। इसका और एक नाम क्या है? रिग्रेशन लाइन है, प्रिडिक्टेड लाइन है, या बेस्ट फिट लाइन है। ओके, बेस्ट फिट लाइन। सो एक और चीज हम कह सकते हैं, वे सिंस दिस इज पासिंग थ्रू द फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू द ऑल द डेटा पॉइंट्स, ठीक है, ऑल द डेटा पॉइंट्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे ये सारे डेटा पॉइंट्स है, राइट। तो ये डेटा पॉइंट्स की अगर हम मीन पॉइंट निकाले, इन सबका एक मीन पॉइंट क्या होता है? एक एवरेज पॉइंट अगर हम निकाले तो उस पॉइंट से डेफिनेटली हमारी लाइन जानी चाहिए, राइट। तो वी कैन से अ बेस्ट फिट अ बेस्ट फिट लाइन always always passes through always passes through mean point। ओके, मीन क्या होता है? लेट्स से यू हैव मीन, अगर 1, 2, 3, 4 का मीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का एडिशन करेंगे, राइट। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मीन, तीनों का एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, राइट। तो दिस इज द सेम वे, अगर हम सारे पॉइंट्स का वेट निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, इनका मीन पॉइंट निकाले, एक एवरेज पॉइंट निकाले, उस पॉइंट से हमारी बेस्ट फिट लाइन जाएगी। ओके, उस लाइन से हमारी बेस्ट फिट लाइन जाएगी। कूल, ऑलराइट। एनी कंफ्यूजन, छोटा मोटा क्वेश्चन?
समझ में आ रहा है? ओके, तो क्विकली हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं कि आ, इसी के अंदर लिख देता हूँ मैं और कुछ पॉइंट। तो हमने बेस्ट फिट लाइन कैसे ऑब्टेन करी? टू ऑब्टेन बेस्ट फिट लाइन हमने क्या यूज करा? हमने यूज किया आ, 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 हमने यूज किया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। व्हाट इज y? y इज योर y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। Okay, m is your what? M is your slope. Okay, and c is your interception. Okay, interception. तो हमने ये सारी चीजें फिर से यहाँ पर भी देखी this. So y is your predicted points, इसके ऊपर जो भी points है वो y है, and m is your slope, जो भी slope रहेगा वो, and c is your interception. This point is your c. ठीक है, this point is your c. So the best fit line always passes through what? Mean point ऐसे बोला है हमने यहाँ पर already। ठीक है, best fit line is always passes through a mean point. So once we fit the model into linear regression in the back end, what happens? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। Once we we what we do? We model to fit model into linear linear regression linear regression in back end. What happens in back end? What happens? It uh, 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 it uses gradient descent algorithm. तो आप बोलोगे ये तो इसकी तो बात ही नहीं हुई थी, हमने तो कुछ में डिस्कस ही नहीं किया। बट दिस algorithm इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट डिसेंट algorithm, या कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करता है। कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद हमने एक और अल्गोरिथम यूज करा था, ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इसको ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, और इसका मेन काम क्या होता है? ग्लोबल मिनिमा फाइंड करना। ग्लोबल मिनिमा पॉइंट क्या होता है? इट्स नथिंग बट योर बेस्ट, यहाँ से बेस्ट फिट लाइन। अगर आपको ग्लोबल मिनिमा मिल गया, इट मीन्स यू गॉट बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, और उसके लिए हम यूज करते हैं अल्गोरिथम कहीं रिपीट कॉन्वर्स थ्योरम। ठीक है, रिपीट कॉन्वर्स थ्योरम को ही हम कहते हैं रिपीट कॉन्वर्स थ्योरम को ही हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या करेगा? इट विल समहाउ ट्राई टू फाइंड दिस ग्लोबल मिनिमा। कैसे? यहाँ से इधर स्लोप बढ़ाएगा या स्लोप कम करेगा। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में किया है। ओके, सो इट विल ट्राई टू फाइंड व्हाट? इट विल ट्राई टू फाइंड global global minima. Just global minima. All right. So once we get the global minima, it means we got the best fit line. अगर best fit line मिल गई, जो कि थोड़ा बहुत impossible है मिलना, but somewhat near का line हमें मिलेगा। ठीक है, somewhat near का line हमें मिलेगा। So these are some notes for you. Okay. Then उसके बाद एक important topic आता है, that is called as evaluation. Okay, evaluation. तो evaluate करना कि जो मेरा best fit line है वो सच में evaluation, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा था, राइट? ये क्या करता है? दिस फॉर्मूला कॉस्ट फंक्शन। तो टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट फंक्शन, अगर जब हम कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे, तो नथिंग बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली इवेल्युएटिंग जो पॉइंट्स है, हमारे एक्चुअल पॉइंट है, हमारे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स है, वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाउ लाइंस, हाउ पॉइंट्स वी आर गेटिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ मीन स्क्वायर्ड एरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ओपन कर देते हैं।
तो सिमिलर सा फॉर्मूला हमने कहाँ पे भाई, सिमिलर सा फॉर्मूला हमने कॉपी इमेज देखा था. दिस इज एक्चुअल पॉइंट, दिस इज प्रिडिक्टेड पॉइंट्स, राइट. वाई रिप्रेजेंट एक्चुअल पॉइंट्स, वाई हैट रिप्रेजेंट्स प्रिडिक्टेड पॉइंट्स. इसको हमारी यहाँ पर आ सकता है. कॉपी तो किया है, ग्रुप में डाल दीजिए. ठीक है, तो इसी को यहाँ से उठाते, डाउनलोड, डाउनलोड कर दो. कहाँ पर, हमने डाउनलोड्स में एम एस ई नाम से कर दो. मीन स्क्वाड एरर. आई एम पुलिंग दिस फाइल फॉर यू. ठीक है, या फिर ये इसको मैं गिटहब पे डाल दूंगा. आई एम नॉट श्योर यहाँ पर कैसे लाइव यार. ठीक है, हाउ टू रीड इमेज. चलो ठीक है, एनीवेज. तो बेसिकली यहाँ पर मैं जब गिटहब पे नोट डालूंगा, यहाँ पर वो इमेज ऐड कर दूंगा. ठीक है, दिस इमेज आई विल ऐड. तो इमेज को रीड करने के लिए एक इमेज मॉड्यूल चाहिए रहता है. एनीवे, सो हाउ दिस लुक्स इज, बेसिकली यहाँ पर दिखा देता हूँ. So this is the same formula that we have learned. ठीक है, it is also called as cost function. It is also called as mean squared error. अगर हम error find कर दे, इनके बीच का अगर हमने distance find कर लिया, actual points and predicted points, तो हमें error मिल जाएगा. And that error can be, तो उस error को अगर हम evaluate करें, so we will get to know कि how close is our best fit line is. ठीक है, how close is our best fit line. तो जो इवैल्यूएशन में है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्या है, सबसे पहला मैट्रिक्स है मीन स्क्वायर्ड 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 एरर. ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर. मीन स्क्वायर्ड एरर क्या था हमारा फॉर्मूला, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा एमएससी लिख देता हूँ तभी भी, जैसे अगर समझ में आया तो नहीं आया तो. 1/n, राइट, 1/n. फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन ऑफ, समेशन ऑफ. ठीक है, समेशन ऑफ के अंदर क्या है, y1 क्या है हमारा, y1 क्या है, y1 ये है हमारा प्रिडिक्टेड, सॉरी एक्चुअल पॉइंट्स. y1 हैट अगर मैं लिखूँ हैट ऐसे ठीक है, तो ये है हमारा प्रिडिक्टेड एंड उसके ऊपर स्क्वायर. ठीक है, हैट का स्क्वायर. तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला है. ओके, कुछ इस तरीके से वी कैलकुलेट द मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट, मीन स्क्वायर्ड एरर. तो एक और भी दूसरे फॉर्मूले से, जैसे हमारे पास है मीन स्क्वायर्ड एरर का ही है एक थोड़ा डिराइव्ड फॉर्मूला है, रूट मीन स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड एरर. तो दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर व्हाट, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर व्हाट. मैं ना एक और एक रूट यूज करता दिखा देता हूं. रूट मीन स्क्वायर्ड एरर फॉर्मूला. तो रूट मीन स्क्वायर क्या है, जो हमारा मीन स्क्वायर है उसी को इन्होंने रूट में डाल दिया. ठीक है, इसी चीज को इन्होंने रूट में डाल दिया, बाकी वही है. प्रिडिक्टेड पॉइंट्स, ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड, ये जो एन है नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, तो यही चीज कॉपी इमेज यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ. तो दिस इज व्हाट रूट मीन स्क्वायर. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर है. तो ये भी एक और मैट्रिक्स है. तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ रूट मीन स्क्वायर एरर एंड इसको हम डाल देंगे, इसको हमने डाल देना है किसमें, एक रूट में. तो मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर मैंने ये डाल दिया. ठीक है, तो दिस इज हाउ योर रूट मीन स्क्वायर एरर. तो ये भी क्या रहेगा, एक एरर ही रहेगा, इसी का डिराइव्ड फंक्शन है. ठीक है,
and one more parameter is there. It's called as absolute absolute mean squared error. ठीक है, absolute mean squared error. तो ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो द सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, बट इसको वो एब्सोल्यूशन एब्सोल्यूट जो होता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, एब्सोल्यूट मीन्स पर है, सो इनके आगे ना एक एब्सोल्यूशन लग जाएगा सबके अंदर। ये देखो, ये भी वही है, एक्चुअल है, प्रिडिक्टेड है, बस स्क्वायर की जगह पे दे हैव एडेड दीज, यू कैन सी इन्होंने क्या ऐड करा है, एक ये एब्सोल्यूशन ऐड करा है। ठीक है, इसको एब्सोल्यूशन कहते हैं। इफ आई कॉपी दिस इमेज, ठीक है, तो ये भी वो ही करेगा। तो आप बोलो कि अरे यार इतने सारे मैट्रिसेस क्यों चाहिए थे, इतने सारे मैट्रिसेस क्यों चाहिए थे? तो बेस्ड ऑन द डेटा वो, मतलब ये चीज़ें दे हैव टू डू। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा दे हैव टू डू दीज थिंग्स। तो मैं क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर एरर, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर है या मीन एब्सोल्यूट है। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा, ये डाल देंगे इसके आगे एब्सोल्यूशन। ठीक है, they will add absolution here. So let me just add it here only. Okay, they will add absolution here. So all these formula are related to evaluation. तो evaluation क्या रहेगा, हम evaluate करेंगे whether our model is performing fine or not, what it is doing. Okay, what it is doing. So very first thing that we can do is to use that. The very first thing what we do, higher the higher the mean let's say higher the mean square error और मीन या स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर्ड एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या क्या लिखा हमने, हायर द मीन स्क्वायर एरर, हायर द रूट मीन स्क्वायर और रूट मीन मीन एब्सोल्यूट एरर, देन द पुअर फॉर द मॉडल परफॉर्मिंग, देन पुअर द मॉडल परफॉर्मिंग। और कोई मतलब सेंस कर पा रहे हैं इसमें हम, कि अगर एरर ज्यादा रहा, एरर मीन ये सारे एरर्स है, राइट, वी आर कैलकुलेटिंग एरर्स, इफ दीज एरर्स आर हायर, है ना, यहाँ पर भी हमने क्या देखा था, अगर एरर बहुत ज्यादा है, दिस वन, अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, इट मीन्स ये बेस्ट फिट लाइन है ही नहीं, इट मीन्स हमारा जो मॉडल है वो ठीक से परफॉर्म करेगा ही नहीं। ओके, द मॉडल विल नॉट परफॉर्म बेटर। ठीक है, द मॉडल विल नॉट परफॉर्म बेटर। तो ऑल दीज फार्मूलाज, ये जो भी हम देख रहे हैं, एक तो आपको ये मतलब इनको मगअप करने की जरूरत है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पॉइंट्स एंड प्रेडिक्टेड पॉइंट्स। ठीक है, बस उनको कैलकुलेट करने का मेथड डिफरेंट डिफरेंट है। इन्होंने मीन स्क्वायर एरर में इन्होंने स्क्वायर कर लिया, समेशन कर दिया, रूट मीन स्क्वायर ने उन्होंने रूट में डाल दिया, वही सेम फॉर्मूला एब्सोल्यूशन में, एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर एरर में उन्होंने क्या कर दिया, उसको एब्सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। ओके, एब्सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। So all these formulas does the same work. All these formulas does the same work. इसको और एक साइंटिस्ट लोगों ने और एक फॉर्मूला या और एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स निकाला है, दैट इज आर स्क्वायर्ड। ठीक है, आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो निकाले, इसको हम बाद में करते हैं। ठीक है? या आगे पे कहीं पे लिख देता हूँ, एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो एक आर स्क्वायर निकाला है, एक एडजस्टेड आर स्क्वायर निकाला है। तो ये दोनों भी क्या करते हैं, इनके भी अगर फॉर्मूलाज आप देख लो, तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा। दे विल आस्क यू व्हाट दैट फॉर्मूला डू।
ठीक है, दे विल आस्क यू व्हाट दैट फॉर्मूला इज। तो कॉपी इमेज, इस पर थोड़ा अंदर जाके देखते हैं वेदर इज इट व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न। तो यहाँ पर भी देखना, देखो सिमिलर सा चीज कर रही है ना, कि एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्चुअल माइनस, बट इन्होंने इसको एक दूसरे के डिवाइड में लिया है एंड वन माइनस समथिंग करा। तो एस एस आर एंड एस एस टी क्या होता है हम इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, एस एस यहाँ पर एडजस्ट स्टेट का भी दिया है। ठीक है, एस एस आर एस एस टी क्या है वो समझते हैं पहले। ठीक है, तो फॉर्मूलाज को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका, और ये इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या है, ये चीज तो हमें पता है ऑलरेडी, इट इज नथिंग बट व्हाट, एक्चुअल में से प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक हेड दिया है, यहाँ पर एक डैश दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक हेड दिया है, यहाँ पर डैश दिया है, यहाँ पर लिखा है एस एस आर, यहाँ पर लिखा है एस एस टी। एस एस का एस एस आर का मीनिंग क्या है, इज द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूल, एस एस टी का इज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, कुछ तो लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से। नाउ इसके पहले इसको चला देता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ। ठीक है, एस एस टी, एस एस टी का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ टोटल एरर, सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ टोटल एरर। मीनिंग क्या हो गया, ये वही है चीज, मतलब जो टोटल एरर है हमारा उनका समेशन किया, स्क्वायर्ड किया, ये चीज तो वही है ना, जो हमारा टोटल एरर है। एरर क्या रहेगा, मीनिंग एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, उसका सम किया, उसका स्क्वायर किया, है ना, ये तो वही चीज होगी। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ, यहाँ पर लिखा है ना, सम ऑफ वाई एक्चुअल, वाई एक्चुअल वाई एक्चुअल माइनस वाई वाई मीन। ठीक है, माइनस वाई मीन टू दी पावर, पावर ऐसे लिखते हैं हम, टू। ठीक है, ये कुछ सिमिलर सा फंक्शन होगा। फिर एक आता है एस एस ई, एस एस ई का क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ रेसिड्यूल एरर, सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ रेसिड्यूल। ये कैसे लिखेंगे हम, सिमिलर सा सम। ठीक है, फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, सम, उसके अंदर हम डालेंगे वाई एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल से माइनस होगा क्या, माइनस होगा वाई प्रेडिक्टेड वैल्यूज माइनस होगी एंड उनका आएगा स्क्वायर। ठीक है, और एक थर्ड टर्म क्या थी यहाँ पर, थर्ड मतलब एक्चुअली हमने एस एस टी, एस एस टी, तो आप बोलोगे वहां पर तो दो ही वैल्यूज थी, आपने तीसरी वैल्यू कहाँ से लाई, तो आई विल गेट टू नो, बिकॉज इस प्रेडिक्टेड वैल्यूज को हम यूज करेंगे, सम ऑफ, इसका रहेगा सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन एरर, रिग्रेशन एरर कह लो, या फिर यहाँ पर क्या दिया है एस एस टी को, स्क्वायर्ड ऑफ, देखो थोड़ा बहुत टर्म्स इधर उधर होती है, द सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ये भी लिख सकते हैं, डेविएशन ऑफ मीन। तो अभी ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि अगेन ये चीजें हम फिर से देखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे रहेगा, सम ऑफ वाई, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, प्रिडिक्टेड वैल्यूज से माइनस होगा आपका वाई मीन। अभी इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर इसका रहेगा स्क्वायर। तो अभी तीनों चीजों को देखो, तीनों चीजों को ऑब्जर्व करो। तो फर्स्ट हमने कहा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एरर। ठीक है, तो जब ये टर्म आएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एरर, तो आपको एक्चुअल जो आपका वैल्यूज है उसके अंदर से मीन निकालना है। ठीक है, उसके अंदर से मीन निकालना है। जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल एरर आएगा, तब आपको एक्चुअल वैल्यू से प्रेडिक्टेड वैल्यूज निकालनी है।
ठीक है। एंड सिमिलरली जब सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ रिग्रेशन एरर आएगा तब आपको जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी यहाँ पर, वो प्रिडिक्टेड वैल्यू से आपको मीन निकालना, इनसे ये निकालना। ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला उन्होंने बनाया था इन ऑर्डर टू गेट, जैसे अलग अलग ये डिफरेंसेस उनको मिलेंगे, in order to get they will get some r square value. Okay, they will get some r square value, या कहाँ पर है r square value, इनको कुछ मिलेगी। वो r square value कुछ ऐसी रहेगी। सबसे पहले तो वो नेगेटिव नहीं रहेगी, उसकी कुछ नोट्स लिख देता हूँ। नोट्स विल बी r square value can never be negative in actual scenario, scenario। ठीक है। आर स्क्वायर वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जब ये फॉर्मूला हमने देखा है यहाँ पर, अभी ये मैं यहाँ पर कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ। सो व्हेन आई, हम देखते हैं, कर देखते हैं सारी इमेज अगर हम लाए यहाँ पे लिखा है। नहीं आ रहा है इमेज। हम लिखते हैं चैट जीपीटी को, हाउ डू आई इंपोर्ट images in on Google Colab in Python cells। कुछ कमांड दे देगा ये। चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन। इसका पाथ दे देते, होता है नहीं होता वो देखेंगे पहले, अगर हो गया तो फिर तो शाबाश शाबाश। चलो सही है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ ऊपर, यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो रन कर देंगे। देन हम आएंगे यहाँ पर, जो कि आपका मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बाकी चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ बाद में। एंड यहाँ पर हम डालेंगे स्क्वायर्ड एरर, स्क्वायर्ड आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हमने डाल देना है यहाँ पर। आर स्क्वायर, क्या ये हमारी नोटबुक। सो आर स्क्वायर यहाँ पर मैं लोड कर देता हूँ, लोड तो डाल देंगे ये कोड, कॉपी पाथ, टेस्ट। ये आ गया आपका आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका आर स्क्वायर। सो नाउ ये जो आपका एस एस, एस एस को ही एस एस आर, सॉरी, ये आपका रिग्रेशन हो गया। ये आपका एस एस की जो है, अरे यार उल्टा लिख दिया क्या। ठीक है, ये आपका एस एस टी रहेगा, ये आपका एस एस आर रहेगा, एस एस आर, एस एस आर। ठीक है, ये आपका रेगुलर रिग्रेशन एरर रहेगा ये वाला, एंड ये रहेगा आपका टोटल एरर। ठीक है, तो इस ये डिवाइड बाय ये, बेसिकली फार्मूला कैसे बन रहा है, वो कैसे बन रहा है फार्मूला, 1 माइनस एस एस आर डिवाइड बाय एस एस टी। ओके, 1 माइनस एस एस आर डिवाइड बाय एस एस टी। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी,
दैट कैन बी नेवर नेगेटिव। ठीक है, दैट कैन बी नेवर नेगेटिव। ओके, सो ये चीज हमें मतलब इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है, दैट्स व्हाई आई एम डेलिबरेटली टेलिंग दिस कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं रह सकती। दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। however 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 only in cases only in cases when for most of the points in like residual error में is greater than SST। ठीक है, कैसे रहेगा अगर तो एस एस आर का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा रहा, लाइक यहाँ पर 100 रहे और यहाँ पर कितने रहे, डिवाइड बाय 1, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 100 मीनिंग 99, देन द आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव, विच इज नॉट डिजायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो बहुत बार इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन भी पूछेगी कि आर स्क्वायर वैल्यू कब नेगेटिव रह सकती है। तो यू हैव टू से कि जो मेरा एस एस आर है, एस एस आर क्या रिग्रेशन जो एरर है वो बहुत ज्यादा है, द एरर इज वे बिग देन व्हाट एस एस टी, मेरा टोटल स्क्वायर एरर से मेरा रिग्रेशन एरर बहुत ज्यादा है, तब मेरा आर स्क्वायर नेगेटिव रहेगा। तो ये कंडीशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन, द like the best fit line will be worse। ओके, द यहाँ पर क्या होगा, द बेस्ट फिट लाइन विल बी वर्स्ट देन मीन लाइन। मीन लाइन से भी वर्स चली जाएगी बेस्ट फिट लाइन हमारी। ओके, मीन लाइन से भी वर्स चली जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होगी अगर हमारा नेगेटिव आर स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव चले गया। ठीक है, आर स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव चले गया। ओके, यहाँ पर कुछ कंडीशन, यहाँ पर और एक चीज लिख देता हूँ, इन रियल सिनारियोज द आर स्क्वायर विल नॉट बी विल बी लिख देता हूँ, विल बी पॉजिटिव। ठीक है, आर स्क्वायर के बारे में पता चल गया हमें, आर स्क्वायर के बारे में पता चल गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन 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 एनीवन? I will give you some time to think or digest all these things। ये सारी चीजें डाइजेस्ट करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा। ज्यादा कुछ देखा नहीं हमने। हमने देखा रिग्रेशन क्या है, लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। ये बस एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज करा जाता है। इसके अंदर हमने देखा था टोटल वेरिएबल्स क्या है, टारगेट वेरिएबल्स क्या है, इनपुट वेरिएबल्स क्या है, मल्टीनोमियल बस एक एडिशनल डेफिनेशन है जिसके अंदर एक से ज्यादा इनपुट वेरिएबल्स होंगे। बस भाई, बेस्ट फिट लाइन हमें ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा कि बेस्ट फिट लाइन वो लाइन होती है जो सब ऐसे मतलब जो भी हमारे एक्चुअल पॉइंट्स है इनके बीच में से जाएगी, बट द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी वेरी लेस, और जो भी डिस्टेंस रहेगा उनको हम एरर कहेंगे। एरर कौन से है, तो हमने वो डिफरेंट डिफरेंट एरर्स कैलकुलेट करना सीखा। तो फर्स्ट मतलब एक ही एरर है बट उसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना सीखा। तो फर्स्ट हमने सीखा मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो कैलकुलेट करता है, उसी को रूट मीन स्क्वायर कर दिया, इसको ही रूट में डाल दिया। तो ये कैसा है ना, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं दे एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे वांट टू लुक एट द वैल्यूज कि कैसी वैल्यूज बदल बदल कर आ रही है। ठीक है, कैसी वैल्यूज चेंज होकर आ रही है। तो ऐड दोज इमेजेस हियर एंड एक आर स्क्वायर उन्होंने निकाला। आर स्क्वायर इज ऑल्सो द सेम मैट्रिक्स की जिससे आपको आपका मॉडल कैसे वर्क करता है वो पता चलेगा। ठीक है, और एक एडजस्टेड आर स्क्वायर हमने देखना है। एडजस्टेड आर स्क्वायर,
तो एडजस्टर आर स्क्वायर जो है, ये जो आर है ये अपना आर स्क्वायर है, ये वाली, ठीक है। ये क्या करेगा, 1 - आर स्क्वायर, एन आपका रहेगा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन द डेटा सेट। तो बेसिकली इट फाइंड समथिंग, समथिंग बेसिकली वही एरर ही फाइंड करता है, बट व्हेन इट फाइंड्स इट गिव्स यू मोर मोर विजिबिलिटी टुवर्ड्स द डेटा। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, ये भी लगेगा यार हमें, ये ऐसे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। और इनको कर देते हैं आर स्क्वायर को, कॉपी पाथ, तो आपकी इमेज आ गई, ठीक है। एंड दिस वैल्यूज इनको कॉपी कर लेते हैं। वेर एन इज द नंबर ऑफ योर डेटा पॉइंट्स, जो आपके डेटा पॉइंट्स है, के है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ मतलब अगर आपके पास 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप 10 डालोगे, 10, ओके। एंड देन आर आर स्क्वायर जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ठीक है। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक एडजस्टेड आर स्क्वायर का वैल्यू मिलता है, ओके। एडजस्टेड आर स्क्वायर का वैल्यू मिलता है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर आपको और एक थोड़ा व्यू दे देता है, ठीक है। आर स्क्वायर आपको और एक व्यू देता है, ओके। तो कुछ इस तरीके से ये सारे आपके इवैल्यूएशन मैट्रिसेस है, ठीक है। इवैल्यूएशन मैट्रिसेस है जो हम देखते हैं लीनियर रिग्रेशन में, जो हम देखते हैं लीनियर रिग्रेशन में। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं को रिलेशन। क्यों कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है को रिलेशन। क्यों कैलकुलेट करना है को रिलेशन वो भी समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था यहाँ पर, व्हेन वी विल कॉल दिस पॉइंट्स, या अभी जो भी आपका रिग्रेशन है उसको लीनियर रिग्रेशन, जब हमने हमने ऑब्जर्व करना है कि जो जो डेटा पॉइंट्स है आपके टारगेटेड वेरिएबल से, हाँ, वो लीनियरली रिलेटेड होते हैं, लीनियरली रिलेटेड। तो लीनियरली रिलेटेड फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होता है उसके बीच का को रिलेशन। एंड को रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होता है आर स्क्वायर की वैल्यू, या आर की वैल्यू पकड़ लो, ठीक है। आर की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कोरिलेशन से हमें क्या पता चलता है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिलेटेड, ठीक है। तो मैं एक चीज यहाँ पर लिख देता हूँ, एक चीज यहाँ पर लिख देता हूँ, विच इज इट टेल्स अस about the about how well the independent and dependent features are related, okay। it tells about कि जो independent variables हैं, independent variables किस तरीके से किस नो किस तरीके से रिलेटेड है, okay, किस तरीके से रिलेटेड है। तो जो r का वैल्यू हमें आ रहा था, दैट शुड बी आइदर ग्रेटर देन 0.7, तो हम बोलेंगे कि ये अच्छा, लाइक गुड रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द डेटा पॉइंट्स इज गुड, और इट शुड बी लेस देन -0.7, -0.7, तभी भी हम कहेंगे गुड रिलेशन, गुड रिलेशन, ओके। तो इन दो सिनारियोज में हमने कहना है कि भाई बढ़िया चल रहा है, ठीक है, हमने कहना है बढ़िया चल रहा है, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें देख लिया अभी। तो पिछले लेक्चर में जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया था, हमने सबसे पहले क्या किया था, मैंने इसको रिवाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि आई लेफ्ट दिस फॉर नाउ, कि जो भी हमने चीज़ें अभी तक देखी वो सब चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले हमने क्या करा, टोटल डेटा लोड किया, डेटा लोड कहाँ पर किया, यहाँ पर किया, ठीक है।
तो दिस इज योर डेटा राइट नाउ। ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ कुछ चीजें देखी जो पांडा से रिलेटेड है, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना। बट यहाँ पर हमने जो स्पेसीज थी उसके अंदर आयरिस सेटोसा को रिप्लेस कर दिया 1 से, वर्सिका को रिप्लेस कर दिया 2 से, एंड वर्जिना को रिप्लेस कर दिया 3 से। क्यों? बिकॉज because machine learning or computer does not understand this text, it understand the numerics numbers। ठीक है, नंबर्स अंडरस्टैंड करता है इसलिए। फिर हमने उनको टेस्ट एंड ट्रेंड में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, बट उसके पहले हम ये कोरिलेशन फाइंड कर रहे थे, वी आर फाइंडिंग द कोरिलेशन। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे पेटल लेंथ का सेपल लेंथ से कोरिलेशन अच्छा है। ठीक है, कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं हम, पेटल विड्थ से सेपल विड्थ का कोरिलेशन अच्छा है। ठीक है, पेटल विड्थ का सेपल विड्थ से कोरिलेशन अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो आई थिंक 0.7 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसे बोला था ना हमने। काफ़ी गया, काफ़ी गया, काफ़ी गया। 0.7 से ज़्यादा चाहिए, ओके, 0.7 से ज़्यादा, वही बोल। ओके, सो दीज थिंग्स आर, मतलब ये रिलेशन हम हर एक डेटा पॉइंट्स का एक दूसरे से देख रहे हैं। सेपल लेंथ का सेपल लेंथ से क्या रहेगा 1, बिकॉज ये खुद से रिलेशन कैसे रहता है, 1 ही रहता है ऑलवेज। सेपल लेंथ का सेपल लेंथ से 1 ही रहेगा, ऑलवेज 1 रहेगा। ठीक है, बट दीज थिंग्स देखना, पेटल विड्थ का मैंने देखना है सेपल विड्थ से -0.37 है। ठीक है, तो ये क्या है, लेस देन 0.7 है, so which is a good relation। तो हमें जो डेटा मिला है, एंटायर डेटा इज अ गुड रिलेशन, दे हैव अ गुड रिलेशन बिटवीन ईच पॉइंट। ठीक है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशन है। वंस दिस रिलेशन इज गुड, ये आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा, अच्छा ये तो अच्छा दिख रहा है, रिलेशन अगर अच्छा है इट मीन्स, हमने ये यहाँ पर ड्रॉ करके भी देखा, अगर रिलेशन अच्छा है इट मीन्स जो मैं लाइन इनके अंदर से ड्रॉ करूंगा, व्हेन आई विल ड्रॉ द लाइन, बेस्ट फिट लाइन, दैट विल बी अ गुड लाइन। ठीक है, हमने कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी देखे, ग्राफ भी देखे। उसके बाद हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी, एक्सप्लेन एक्स वाई, एक्सप्लेन वाई टेन या टेस्ट, ट्रेन एंड टेस्ट में हमने स्प्लिट कर दिया डेटा को। देन वी ट्रेन द मॉडल, कहाँ पर ट्रेनिंग करी हमने मॉडल की, यहाँ पर हमने ट्रेन कर दिया मॉडल को, और फिर हमने प्रिडिक्शन निकाला कि वाई प्रिडिक्शन निकाल के दो, प्रिडिक्शन निकाल के दो बेसिकली। और जब हमने ये सब प्रिडिक्शन निकाल के हमने क्या कैलकुलेट करा था, मीन स्क्वायर्ड एरर। तो एरर हमको दिखा 0.03। ठीक है, 0.03, फिर हमने रूट मीन स्क्वायर निकाला 0.19। ठीक है, 0.19। तो ये हर एक जो मैट्रिक्स है, जैसे मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हमको 0.414 मिला, आर स्क्वायर हमको मिला 0.94, एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर हमको कुछ एरर दे दिया था हमने। तो इट इज द सेम फॉर्मूला जो हमने अभी देखा है, आर स्क्वायर का फॉर्मूला दैट्स व्हाई। ठीक है, so all these things we do for getting the error। एरर कितना है, कितना परसेंट एरर है इसके अंदर है, पॉइंट समथिंग समथिंग एरर, 0.37 एरर। इसके अंदर रूट मीन स्क्वायर एरर अगर से निकालू तो मुझे 0.19 का एरर मिल रहा है मेरे डेटा सेट में। मीनिंग मुझे जो एक्यूरेसी मिल रही थी समवेयर अराउंड 99% मिल रही थी। इसका मतलब जो मेरा डेटा है वो बहुत अच्छे से कोरिलेटेड है, मेरी जो बेस्ट फिट लाइन है वो बहुत अच्छी, मतलब इस मॉडल को कहीं पे ना कहीं पे एक ग्लोबल मिनिमा मिला है। ठीक है, इट गॉट समवेयर ग्लोबल मिनिमा। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, वेरिएंस कैलकुलेट करना, बहुत बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं राइट, हमने अब तक स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीजें कैलकुलेट करी है। ओके, तो वेरिएंस क्या होता है? तो बेसिकली इट इज अ स्प्रेड ऑफ टोटल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। मतलब जो हम यहाँ पर देखें ऊपर, कोई भी पकड़ लीजिए, ठीक है ना, इट इज
It is the spread of all the total data points on the graph. Okay, if the spread is very high, like the data points are spread all over the graph, it means इसका variance बहुत ज़्यादा है. अभी इसमें क्या दिख रहा है? Variance अगर बहुत ऐसे कोने कोने में भी अगर points रहते हैं तो इसका variance बहुत hard मतलब ज़्यादा रहता है. अभी इसका variance कम है, ठीक है, इसका variance ज़्यादा है, इसका variance ज़्यादा है, इसका variance कम है. Okay, okay. So when the variance increases, the model's accuracy would decrease. क्यों? क्यों हो गया ऐसे? अगर वेरिएंस बढ़ गया तो आपके डेटा पॉइंट से वो हर जगह पे स्प्रेड होके आपका मॉडल का एक्यूरेसी क्यों क्यों गिरेगा? वाई? Formulas are too much useful or just to understand? So it is to understand only. तो अभी कभी हम जब वेरिएंस भी अभी वेरिएंस का अगर मैं फॉर्मूला दिखाऊँ आपको, वेरिएंस वेरिएंस का फॉर्मूला, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है. बट नो वन विल आस्क यू दिस फॉर्मूला. मैं खुद नहीं पूछूंगा आपको, बिकॉज आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज एसटी, ठीक है, हम बोलेंगे एसटी डॉट वेर और उसके अंदर वेरिएंस के लिए मुझे मेरे डेटा पॉइंट्स पास कर दूंगा 1 2 3 4, है ना. ये डेटा पॉइंट्स मैंने पास कर दिए और मुझे इनका वेरिएंस निकाल के दे दो. वेरिएंस का वेरिएंस ये इंपोर्ट हो रहा है, फिर हमने कहना है एस टी डॉट वेरिएंस, ठीक, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया मेरे डेटा पॉइंट्स, है ना, ऑल दिस. तो अंडर द हुड ये क्या कर रहा है? व्हाट इट इज, इसने वेरिएंस निकाल लिया, है ना. ये मेरे डेटा पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल. अंडर द हुड इट इज यूजिंग दिस सेम फार्मूला. तो आपको ये फार्मूलाज मगअप करने की जरूरत है ही नहीं. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये कर क्या रहा है. अगर मेरा वेरिएंस कहाँ पर गया? वेरिएंस क्या है? व्हाट इज वेरिएंस? फिर से एक्सप्लेन कर. वेरिएंस इज नथिंग बट द स्प्रेड ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. अगर ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हर जगह पर स्प्रेड हो गए आपके पॉइंट्स, तो उसको बोलेंगे हम वेरिएंस, हाई वेरिएंस. ओके, एंड इफ योर पॉइंट्स आर नॉट स्प्रेड अक्रॉस द ग्राफ, जैसे ऐसे ही है ना, पास पास नहीं है. और कौन सा एग्जांपल? ये पास पास नहीं है, ये पास नहीं है, ठीक है. दीज ग्राफ हैव लो वेरिएंस, इनको लो वेरिएंस है, इसको ज्यादा वेरिएंस है. तो इस केस में माय क्वेश्चन इज, अगर वेरिएंस बहुत ज्यादा है तो मॉडल का एक्यूरेसी बढ़ेगा या घटेगा? वेरिएंस अगर बहुत कम है तो मॉडल का एक्यूरेसी घटेगा या बढ़ेगा? क्वेश्चन इज लाइक दिस. वेरिएंस हाई है, वेरिएंस हाई है, ठीक है. तो मैं इसको बताओ मॉडल का एक्यूरेसी हाई है या लो है, ठीक है. सेकंड बताओ वेरिएंस अगर मतलब वाइसा वर्सा हो जाएगा वो. अगर वेरिएंस हाई है तो क्या होगा? मॉडल का एक्यूरेसी बढ़ेगा या घटेगा? एवरीवन इन द कमेंट्स. लो. ओके, मेक सेंस. बिकॉज क्यों होगा वैसा? अगर ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, इससे बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, मैं बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा इससे. बिकॉज माई एम इज टू ड्रॉ, बिकॉज माई एम इज टू, इसके जो डेटा पॉइंट्स है इनके अंदर के, ये जो मेरे एक्चुअल पॉइंट्स है उनका डिस्टेंस एंड मेरे बेस्ट फिट लाइन का डिस्टेंस कम रहना चाहिए. अब इस केस में अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ऐसे ड्रॉ कर दूं लाइन, क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? इट विल गिव मी अ बेस्ट फिट लाइन वेरी इजीली. बट इस केस में नहीं होगा वो, कुछ ऐसे लाइक यहाँ ये तो दूर दूर हो गए ना पॉइंट. So in that case, the system will fail. So now let me write some notes for you. क्या है? Variance is the spread of, variance is the spread of the total data points on the graph. ठीक है, ये चीज हमने देखी. उसके बाद हमने क्या देखा? If the spread, if the spread is high, अगर हाई है इसका मीनिंग क्या होता है? वेरिएंस इज हाई, ठीक है. वेरिएंस इज हाई, अगर मेरा स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो वेरिएंस भी हाई होगा.
एंड अगर वेरिएंस हाई है, वेरिएंस अगर हाई है, मॉरल एक्यूरेसी एक्यूरेसी इज लो, ठीक है, मॉरल एक्यूरेसी इज लो. Similarly, if the spread is low, if the spread is low, variance is low, but my model accuracy is high. Okay, so meaning मैंने जब भी वेरिएंस निकालना है, अगर मैंने वेरिएंस निकाल लिया किसी भी पॉइंट्स के बीच में का, तो मुझे ये तो आइडिया आ जाएगा कि मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वेदर माई एक्यूरेसी विल इंक्रीज और नॉट इंक्रीज. ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ से भी उठा लेता हूँ. मेरा एक्चुअल फॉर्मूला है ये, ठीक है, दिस इज माई एक्चुअल फॉर्मूला गाइस. सेव कर देता हूँ डायरेक्टली, ग्रुप में डालने से. वेरिएंस ये क्या है मेरा, दिस ठीक है, इजी ले लो. कहाँ पर है मेरी फाइल? ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया. तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा ये वेरिएंस, ठीक है, ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा ये वेरिएंस. तो ये हो गया हमारा समेशन, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट इस तरीके से लिख देता हूँ. सम हो गया हमारा समेशन, ठीक है, समेशन करेगा ये. नेक्स्ट क्या है हमारा एक्स आई. एक्स आई क्या कर रहा है, एक्स आई, दिस एक्स आई क्या रहेगा मेरा, मेरे एक्चुअल पॉइंट्स रहेंगे, एक्चुअल पॉइंट्स, ठीक है, एक्चुअल पॉइंट्स. फिर मेरा एक्स बार क्या रहेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स बार कह दो या एक्स एम कह दो, इसको एम भी रहता है बहुत बार कुछ फॉर्मूला में मिलेगा. ये रहेगा मेरा मीन ऑफ ऑल द एक्चुअल पॉइंट्स, ठीक है, ये मीन कैलकुलेट करेगा, ठीक है. एन विल बी माई नंबर ऑफ पॉइंट्स, एन विल बी माई नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है. तो ये जब कर रहा है कैलकुलेट, तो यहाँ पर क्या रहेगा, समेशन कर देगा ये चारों की, ठीक है. फिर एक्चुअल पॉइंट्स है ये मेरे, और इनका एक मीन रहेगा, इन्हीं पॉइंट्स का एक मीन क्या रहेगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाई 4 विल बी वॉट एवर द आंसर, है ना, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग. एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या रहेगा, यहाँ पर हम 4 डालेंगे. फिर जो वैल्यू आएगा दैट विल बी दिस वैल्यू. टेस्ट करके देखो यही मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ you calculate the variance, ठीक है, this is how you calculate the variance. ऑल राइट, तो ये हो गया आपका वेरिएंस एंड ऑल दोस थिंग्स जो आपके नोट्स होते हैं, ये आपको आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, आप गो थ्रू कर सकते हो. और एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, वो भी सिमिलर सा ही होता है गाइस. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्विकली ले लूँ क्या मैं, और 2 मिनट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, इट इज लाइक, इट विल टेल यू हाउ फार द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन पॉइंट, ठीक है. अगर मैं एक 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दे तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर. स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन. फिर से हम यहाँ पर कुछ डायग्राम्स पे आ जाते हैं. तो पकड़ लो ये आपके स्प्रेड है, ठीक है, ये आपके एक्चुअल, ये आपके डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपके डेटा पॉइंट्स. तो इन डेटा पॉइंट्स का एक मीन पॉइंट रहेगा ये वाला, राइट, ये वाला पकड़ लो एग्जाम्पल. तो इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या करेगा, इट विल एक्सप्लेन हाउ फार द डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन पॉइंट, है ना. ये अगर आपका मीन पॉइंट है, हमने यहाँ पर भी कहीं पर लिया था यार इसको, ठीक है. अगर मैं इसको लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मेरा मीन पॉइंट ये है, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताएगा कि ये पॉइंट इससे कितना दूर है, ये पॉइंट इससे कितना दूर है, ये पॉइंट इससे कितना दूर, ये पॉइंट इससे कितना दूर है, ठीक है. दिस इज व्हाट माय स्टैंडर्ड डेविएशन डू विल डू, ठीक है. इफ आई वांट टू राइट सम नोट्स,
So standard deviation will do what? So it explains how far the data points from the मीन पॉइंट, बस इतना ही है। मीन पॉइंट, एक ही मीन पॉइंट रहेगा, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज बेसिकली सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो कोई पूछे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, बस इसका स्क्वायर रूट है, इसी का स्क्वायर रूट है। ओके, दैट्स इट। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिखा दूं आपको, तो देख लो गाइस, इट इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ आपका वो वेरिएंस का, ठीक है। ये पकड़ लो। तो दिस इज योर एक्चुअल वो जो स्क्वायर रूट है वो मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी तो डेटा पॉइंट्स वही है, एस टी जी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बाकी तो डेटा पॉइंट्स वही है, जैसे ये समेशन है, एक्चुअल पॉइंट्स है, मीन पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। सो आई होप ऑल दिस इज समवॉट क्लियर। ये थियोरेटिकल चीजें हो गई, प्रैक्टिकल चीजें हमने पिछले लेक्चर में करी है, ठीक है। तो बट वी शुड नो कि इसके पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। इस जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हो क्या रहा है, ठीक है। व्हेन यू विल बी ट्रेनिंग द मॉडल और ऑल दोज थिंग्स जब आप करोगे, तो आपको इसके पीछे का अगर ये नॉलेज है कि व्हाट दिस थिंग्स आर अबाउट, ये चीज़ें है क्या, ठीक है, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि भाई अच्छा ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है। अगर मेरा आर स्क्वायर वैल्यू बहुत कम ज़्यादा आ रहा है इसके ऊपर, इट मीन्स मुझे एक बार वेरिएंस चेक कर लेता हूँ मैं, या एक लो है कम है। अगर वेरिएंस मुझे हाई मिल गया, इट मीन्स मेरे सारे डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। एक बार मैं मीन स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये जो सारे पॉइंट्स थे मेरे, इनका जो मीन से ये कितने दूर है। बहुत ज़्यादा दूर है, इट मीन्स आपको अगर मतलब ये विजुअलाइज कर लिया तो ठीक है, बट जब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा रहता है तो विजुअलाइजेशन भी थोड़ा बहुत फेल हो जाता है। देन ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। तो आप इसको विजुअलाइज कर पाओगे ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और थोड़ा सा गुड न्यूज़ बोल दो, बैड न्यूज़ बोल दो। तो देर आर सम एआई मॉडल्स, लो लो लो, बढ़िया। देर आर सम एआई मॉडल्स, वो आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे कि आपका डेटा कैसा है, ठीक है। एआई फॉर मतलब हम उसको बाद में तो सीख ही लेंगे, है ना, उसको सीख ही लेंगे। बट देर आर सम मॉडल्स कि वो आपको बता देंगे कि हाउ हाउ योर डेटा वर्क एंड ऑल, वो सब चीज़ें। तो नो वरीज, अभी के लिए तो यही है, ठीक है। इफ यू हैव सम मोर क्वेश्चंस लेट मी नो, इफ यू हैव सम मोर क्वेश्चंस लेट मी नो। इफ यू हैव अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो थोड़ा सा गैप था कल परसों के, यस अंडरस्टूड एवरीथिंग आई थिंक। कल परसों के लेक्चर में थोड़ा सा गैप था, इसलिए आई हैड टू रिवाइज, एंड आई होप इसका थोड़ा फायदा हुआ। और हमने काफ़ी नई चीज़ें भी देखी, ठीक है। तो कल हम देखेंगे, अम, हमने देखना है एनकोडिंग क्या होता है, ठीक है। एनकोडिंग देखेंगे हम, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनकोडिंग देखेंगे। एनकोडिंग पे एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। वो सारा ये थियोरेटिकल नहीं रहेगा, वो सारा प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है देयर आर सम अजम्पशंस, ठीक है। कुछ अजम्पशंस होते हैं लीनियर रिग्रेशन में, वो देखेंगे। और अगर टाइम मिलता है तो आउटलेयर ट्रीटमेंट भी देखेंगे, ठीक है। आउटलेयर क्या होता है उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे, ठीक है। ये कुछ इनिशियल पॉइंट्स है, फिर ये एक बार हो गए तो फिर बाकी एल्गोरिथम आधा आधा दिन में खत्म। Alright guys, so see you tomorrow and go through the recordings. I hope recording सही से हुआ रहेगा। एंड इसका प्रैक्टिस करो थोड़ा, बस रिवाइज कर दो बस। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लिया, बाद में माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि बाद में बस प्रोजेक्ट्स ही करेंगे, ठीक है।
मिलते हैं कल। कल छुट्टी है। मिलते हैं पर। बाय बाय।